हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के आज के साप्ताहिक इस सत्र में। ओके। भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 11। भगवान क्या कह रहे हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। वापिस पढ़ते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं, एज ऑल सरेंडर अनटू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स ओ सन ऑफ प्रथा। भगवान कह रहे हैं कि जो जिस जिस भाव से मेरी शरणागति लेता है, मैं उसे उस प्रकार से फल प्रदान करता हूं। सभी लोग एक्चुअली मुझे ही फॉलो करते हैं, है ना? ये भगवान कह रहे हैं सभी लोग मुझे ही फॉलो करते हैं, लेकिन कैसे, वो हमें समझना है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। Everyone is searching for Krishna in different aspects of his manifestations. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahmajyoti effulgence and as all pervading super soul dwelling within everything, including the particles of atoms. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. In the transcendental world, also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. One devotee may want Krishna as supreme master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocations of feeling are there and they are equally exchanged by Lord with different types of worshippers. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord and thus derive transcendental bliss in his loving service. As for those who are impersonalist and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. Such impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to Lord, having extinguished their individuality. Some of them who are not firmly situated even in the impersonal existence return to this material world to exhibit their dormant desires for activities. They are not admitted to the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. For those who are fruitive workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as Yageshwar, and those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. In other words, everyone is dependent for success upon His mercy, Krishna's mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. Okay, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो जिस जिस भाव से मुझे अप्रोच करता है, मेरे पास आता है, मैं वैसा वैसा उस भाव के अनुसार ही उसे फल प्रदान करता हूं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भगवान दे रहे हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान के पीछे नहीं पड़ा है। सभी भगवान को ही प्राप्त कर रहे हैं अलग अलग रास्तों से। ठीक है, अलग अलग रास्तों से। और इसलिए भगवान उनको उन उन प्रकार से फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि नास्तिकों का क्या? नास्तिक तो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनका क्या? अभी यहाँ पे हमें समझना होगा कि भगवान जब कह रहे हैं कि सभी मेरे ही फॉलोअर्स हैं, सभी मुझे ही फॉलो कर रहे हैं,
तो भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि मेरे अस्तित्व को ही स्वीकार करके सब मुझे फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि नास्तिक भी भगवान की ही सृष्टि में आते हैं। तो जो भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, अर्थात जो नास्तिक है, भगवान उनके नास्तिकता को और भी दृढ़ बनाएंगे। इस सिद्धांत को आप समझिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई चाहता है, जैसे कोई कई बार बच्चे माँ बाप के सामने जबरदस्ती करते हैं, उनकी आज्ञा को पर्पसली उल्लंघन करना, न मानना, तो माँ बाप करने भी देते हैं। ठीक है, बहुत बार समझा दिया तो करने भी देते हैं, फिर फल भोगने के बाद बच्चे सुधरते हैं। तो उस दृष्टिकोण से अल्टीमेटली माँ बाप ने उन्हें फ्रीडम दी है कि वो उन्हें वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, है ना? उनके आज्ञा को स्वीकार करके भी और उनकी आज्ञा का अवज्ञा करके भी, अस्वीकार करते हुए भी, ये दोनों तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि नास्तिक आस्तिक के समान महान हो गया। इसका अर्थ ये भी नहीं कि आस्तिक होने के बाद सभी आस्तिक एक समान हो गए, ऐसा नहीं। उनके अंदर अलग 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 श्रेणियां हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तो सभी भगवान को ही फॉलो करते हैं, चाहे वो नास्तिक भी क्यों ना हो। लेकिन वो परमिशन भगवान ने उन्हें दी है, ठीक है, आप नास्तिक बन के रहना चाहते हो, तो भगवान इस प्रकृति के माध्यम से ऐसे इंसिडेंट्स आपके सामने उपस्थित करेंगे जिससे आपका नास्तिकवाद और भी सुदृढ़ होगा। और अगर कोई आस्तिक के दृष्टिकोण से भगवान को फॉलो करता है, तो भगवान उसके अंदर ये ज्ञान भी प्रदान करेंगे या ये फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे जिसके कारण उसके मन में आस्तिकता और सुदृढ़ हो। लेकिन करने वाले भगवान ही हैं, इस बात को हमें समझना होगा। अभी जब बात आस्तिक की आती है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 3 प्रकार के श्रेणियां बताते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं जो भगवान को स्वीकार करते हैं। एक है जो ब्रह्मेति स्तर पे हैं, अर्थात जो भगवान को निराकार मानते हैं, जिनके विषय में हमने पूर्व सत्र में चर्चा की, मायावादी लोग, या साधारण शब्दों में अद्वैतवादी लोग। ये भगवान के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, किंतु उन्हें निराकार घोषित करते हैं। और ये भी कहते हैं कि भगवान बेसिकली क्या है, वो ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म हैं, ये आप जो भी कुछ देख रहे हो वो ब्रह्म है। अविद्या के कारण वो ब्रह्म अलग अलग स्वरूप धारण करता है, और वैसे ही विद्या के कारण ब्रह्म भगवान का स्वरूप धारण करता है। इस प्रकार से उनका कहना है। ये अलग विषय है कि उस सिद्धांत का हमने पूर्व सत्रों में खंडन कर दिया है, लेकिन फिर भी एक जनरलाइज्ड एस्पेक्ट से हम देखें तो कम से कम वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसलिए उस अवस्था को ब्रह्मेति कहा गया है, ब्रह्मन साक्षात्कार। फिर उससे आगे बढ़ने वाले कुछ साधक होते हैं जो कहते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, लेकिन उससे भी आगे है। वो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर भी वो हर एक कण में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। तो उन्हें भगवान का एक मार्जिनल, एक तटस्थ साक्षात्कार, रियलाइजेशन होता है, जिसके विषय में भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वर जो है वो सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। ये निराकारवादियों से आगे बढ़े हुए योगी हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जो भगवान को उसके पूर्ण अस्तित्व के साथ एक्सेप्ट करता है, मतलब भगवान जैसे हैं वैसे। तो भगवान उनके ओरिजिनल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, परमात्मेति जो तटस्थ रूप में है उस रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं, और निराकार इस रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो भगवान का जिसको ज्ञान है वो भगवान को भी मानता है, भगवान के परमात्मा स्वरूप को भी मानता है, और उसी भगवान के निराकार स्वरूप को भी मानता है। जो भक्त ये कहता है कि हम केवल भगवान के साकार रूप की ही आराधना करते हैं, हम परमात्मा को नहीं मानते, हम निराकार को नहीं मानते, तो उस भक्त का ज्ञान भी अधूरा है। जब हम कहते हैं भगवान, तो भगवान का अर्थ है भगवान विद ऑल हिज पोटेंसी, उनके सर्व शक्ति के साथ।
उस सर्वशक्ति के अंदर उनकी परमात्मा स्वरूप आ गए और उनका निराकार ब्रह्म ज्योति भी आ गया। इसलिए भक्त का अंडरस्टैंडिंग सबसे परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो जब हम कहते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग वी आर ऑफरिंग आवर प्रेयर्स टू कृष्णा, हम इसका क्या अर्थ निकालते हैं? इसका उदाहरण मैं आपको दो अ, दृष्टिकोण से देना चाहूंगा। सबसे पहले, जब आप सूर्य को देखते हो, तो सूर्य को देखने के बाद सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? वो है सूर्य का प्रकाश। आप सूर्य के रूप को नहीं देख सकते, या जिस रूप से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उस रूप को आप नहीं देख सकते, पहले आप प्रकाश को देखोगे। तो प्रकाश को देखने के बाद हम कहते हैं कि देखो ये सूर्य है। उसी प्रकार से भगवान की ब्रह्म ज्योति जो निराकार है, ब्रह्म है, उसको देखने के बाद हम कहते हैं कि ये भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये कह देना कि प्रकाश ही सूर्य है, ये गलत है। उसी प्रकार से ये कह देना कि केवल निराकार ही भगवान है, ये गलत है। प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अगर आप उस प्रकाश में और भी अपना ध्यान केंद्रित करोगे, अगर कर पाओ तो आपको दिखाई देगा कि प्रकाश कुछ गोलाकार से निकल रहा है। उस ज्ञान को तटस्थ ज्ञान कहते हैं। अर्थात जब आप देखते हो कि ब्रह्म ज्योति कहाँ से निकल रही है, तो आपको दिखाई देता है कि परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है। फिर जब उस गोलाकार को आप और भी ध्यान पूर्वक देखते हो, या फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से आप उसको स्टडी करते हो, तो आपको पता चलता है कि वो केवल एक गोलाकार नहीं, लेकिन वो सभी ओर से गोलाकार है, केवल एक ओर से नहीं, एक दृष्टिकोण से नहीं। वो एक स्फीयर है, स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है ना सूर्य। और वो सूर्य केवल एक क्या कह सकते हैं हम, प्रकाश का गोला नहीं, अपितु जीवन प्रदान करने वाला एक स्रोत है, एक वस्तु है। और वो सूर्य के आसपास सभी ग्रह मंडल घूम रहे हैं, वो सभी को लेकर जा रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास। तो ये सूर्य के सारे प्रॉपर्टीज हो गए, है ना? और उस सूर्य के क्या क्या गुण हैं, उसमें कैसे गैसेस हैं, तो ये डिटेल्स में स्टडी करना, इसको कहते हैं भगवान। केवल गोलाकार नहीं, या केवल प्रकाश नहीं। ये एक उदाहरण हो गया। तो परमात्मा के परे भी जाना कि परमात्मा क्या है बेसिकली। भगवान जब अपने घर पे रहते हैं तो उनके वास्तविक स्वरूप में रहते हैं, उसे कहते हैं भगवान। जब वही भगवान बाहर भौतिक जगत में क्रिया करने आते हैं, सृष्टि लीला करते हैं, तो महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, और इस प्रकार से उनकी पूरी देवताओं के साथ वो उपस्थित रहते हैं, वो है परमात्मा फीचर। उसके परे है भगवान जो अपने निज धाम में, वृंदावन में, वैकुंठ में, द्वारका में, ऐसे धामों में लीला करते हैं अपने निज भक्तों के साथ। उस लेवल के अंडरस्टैंडिंग को एक्चुअली परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो ये सूर्य का एक उदाहरण हो गया, इसे स्मरण रखिए, अगले सत्र में ये पूछूंगा मैं आपको। दूसरा उदाहरण हम इस प्रकार से देते हैं। मान लीजिए आप हवाई जहाज में कहीं जा रहे हो, आप एयरप्लेन में हो, और नीचे आप जैसे देख रहे हो, तो आपको नीचे दिखाई देता है कि समुद्र है, पूरा नीले रंग का समुद्र है। और उसी नीले रंग के समुद्र के तट पे क्या है? समुद्र का किनारा है, सी बीच है। ठीक है। तो आपको ऊपर से केवल दो ही वस्तु दिखाई देगी, एक श्वेत रंग का जमीन, पृथ्वी, और नीले रंग का पानी। इसके अंदर की विविधता आपको दूर से नहीं दिखाई देती। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण को आप समझ सकते हो कि ये निराकार है, इसमें कोई विविधता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन नीचे उतरता है, तो आपको दिखाई देता है कि पृथ्वी पे केवल श्वेत रंग नहीं है, लेकिन उस किनारे पे, सी बीच पे, कई लोग वहां पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना? आपको ये दिखाई देता है।
लेकिन इतना देखने के बाद भी समुद्र के अंदर की विविधता आपको दिखाई नहीं देती, आपको केवल पृथ्वी की विविधता दिखाई देती है। तो ये प्रकार, इस प्रकार के ज्ञान को परमात्मेति का ज्ञान समझते हैं। लेकिन ज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुआ। जब वो प्लेन और भी नजदीक जाता है, लैंड होता है, तो आपको दिखाई देता है कि समुद्र के अंदर भी प्राणी हैं, जीव हैं। समुद्र के अंदर एक्वेटिक्स हैं, है ना? कुछ वृत पेड़ हैं, पौधे हैं अलग अलग प्रकार के। समुद्र के अंदर कीड़े भी हैं अलग प्रकार के, मगरमच्छ है, कभी शार्क्स हैं, अलग अलग प्रकार के फिशेस हैं। सो वेराइटीज ऑफ लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है समुद्र में, वेराइटीज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है पृथ्वी पे। लेकिन दूर से देखने से लगता है कि एक श्वेत रंग का कोई वस्तु है और एक नीले रंग का वस्तु है। तो ये 3 डिग्रीज ऑफ नॉलेज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मेति स्तर पे है, जैसे भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे जैसे अप्रोच करते हो, मैं वैसा वैसा ही आपके साथ रेसिप्रोकेट करता हूं। तो यदि आप सोचते हो कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, वो निर्विशेष है, उनमें कोई विशेषताएं नहीं है, तो भगवान भी आपके उसी अंडरस्टैंडिंग को और भी सुदृढ़ करेंगे। अगर आप समझते हो कि भगवान, तो आपका ज्ञान अगर उससे और आगे बढ़ा हुआ है, आप समझते हो कि भगवान केवल निराकार नहीं है, लेकिन भगवान सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर रूपी भी हैं, तो भगवान आपके साथ वैसा रेसिप्रोकेशन करेंगे। और जब आप भगवान को पूर्ण दृष्टिकोण से स्वीकार करते हो, उनके पूर्णत्व के साथ, जैसे भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार करते हो, भगवान के विशेषताओं को स्वीकार करते हो, भगवान के अलग अलग गुणों को स्वीकार करते हो, उनके भग ऐश्वर्य को स्वीकार करते हो, तो भगवान आपके सामने वैसे ही प्रकट होंगे। तो हमने निराकारवादियों को तो देखा, परमात्मावादियों को भी देखा, भगवान के भक्तों में कौन से उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी आगे चलकर ये बताते हैं कि भगवान के भक्तों में 4 श्रेणियां हैं। वैसे तो 5 श्रेणियां हैं, बट मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। कोई व्यक्ति भगवान को अपने स्वामी के रूप में देखता है और स्वयं को भगवान के दास के रूप में देखता है, तो भगवान उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे हनुमान जी स्वयं को भगवान का दास समझते हैं और राम को वो स्वामी समझते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। कोई व्यक्ति भगवान को अपने सखा के रूप में देखता है, तो भगवान उसके लिए मित्र बन जाते हैं। ये उन सभी भक्तों की चर्चा हो रही है जो भगवान का अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ब्रह्मेति की, निराकार का नहीं, और परमात्मेति का नहीं। इन दोनों के परे जो श्रेष्ठ ज्ञान है भगवान का, उनके विषय में चर्चा चल रही है। उस श्रेणी के जो भक्त हैं, उनके अंतर्गत 4 कैटेगरीज हैं। एक है दास्य रस में स्थित होने वाले भक्त, तो उनके साथ भगवान स्वामी बन के रहते हैं। एक सख्य रस में स्थित होने वाले भक्त, उनके साथ भगवान सखा के रूप में लीला करते हैं। जैसे वृंदावन के कई सखा हैं भगवान के, श्रीदाम, सुदाम, फिर बाद में मधुमंगल, ये सब वृंदावन के सखा है। और द्वारका के सखा कौन कौन से हैं? पांडव, ये सब भगवान के द्वारका के सखा हैं। फिर आते हैं भगवान के साथ वात्सल्य रस में स्थित होने वाले भक्त, अर्थात जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तो वृंदावन में नंद, यशोदा इत्यादि ये सभी वात्सल्य में स्थित है। और द्वारका में कौन कौन स्थित है? देवकी, वसुदेव, ये सभी द्वारका में स्थित है वात्सल्य रस में। साथ ही साथ कुछ ऐसे भक्त हैं जो डायरेक्टली वात्सल्य रस में नहीं है, लेकिन भगवान जब लीला करते हैं, तो लीला में आयु में श्रेष्ठ होने के कारण भगवान उनके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे विदुर, भीष्म पितामह, ये सभी, जैसे कुंती महारानी, तो ये सभी जो हैं वात्सल्य रस के भक्त हैं। यद्यपि वो रियल में भगवान के माता पिता जैसा रोल नहीं करते, लेकिन लीला में आयु में बड़े होने के कारण भगवान उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं।
फिर आते हैं माधुर्य रस के भक्त। तो जैसे वृंदावन के अंदर गोपियां सभी माधुर्य रस में स्थित हैं, वैसे ही द्वारका के अंदर भी कृष्ण के सभी 16,108 पटरानियां भी माधुर्य रस में स्थित हैं। तो ये सभी लोग अल्टीमेटली भगवान की ही आराधना करते हैं, लेकिन कुछ भगवान के एकदम निकट है, कुछ भगवान के थोड़े दूर है, कुछ भगवान से कई अधिक दूर है, और नास्तिक भगवान से बहुत ज्यादा दूर है। तो अल्टीमेटली सभी भगवान को ही फॉलो करते हैं। अभी मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आना चाहूंगा। नास्तिकवाद का सबसे अच्छा खंडन करने का तरीका क्या है पता है? जो ये कहता है कि हम भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते, उनको केवल आप एक प्रश्न पूछिए कि आपको यदि ये कहना है कि मैं भगवान को स्वीकार नहीं करता, तो भी वो कहने के लिए भी आपको भगवान ये कहना पड़ता है। उस वाक्य के अंदर भी भगवान मेंशन करना पड़ता है। वी डू नॉट एक्सेप्ट गॉड, और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान अस्तित्व में नहीं है। ये कहने के लिए भी भगवान या गॉड कहना पड़ता है। तो भगवान का अस्तित्व इतना गहरा है कि उनके अस्तित्व को नकारने के लिए भी उस शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप अगर उस शब्द का प्रयोग ही ना करो, भगवान अस्तित्व में नहीं है, अगर भगवान इस शब्द को हटा दो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कौन अस्तित्व में नहीं है? आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को? हाउ विल यू डिफाइन दैट? सो नास्तिक व्यक्ति अपने स्टेटमेंट के अंदर ही अगर भगवान को हटा नहीं पा रहा, तो उनके अस्तित्व को कैसे हटा सकता है? वो शब्द को नहीं हटा सकता, ये कहने के लिए भी समहाउ और अगर वो ये कह दे ठीक है हम भगवान शब्द नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो भी तो किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहा है। तो इंडिकेट करना ही मतलब उसका अस्तित्व इतना गहरा है कि आप अपने वाक्य से उसको हटा नहीं पा रहे, तो उसके खुद के सृष्टि से आप उसे कैसे हटा पाओगे? तो भगवान इज सो, मतलब भगवान का अस्तित्व इतना गहरा है, इतना गहरा है कि नास्तिक को भी अगर कहना हो कि भगवान नहीं है, उसके लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा, या किसी ना किसी कॉमन नाउन को एड्रेस करना पड़ेगा, और वो कॉमन नाउन अल्टीमेटली भगवान ही है। नहीं तो स्टेटमेंट का अर्थ ही नहीं रह जाता। अगर आप वस्तु को एड्रेस नहीं करोगे दैट ही डज नॉट एग्जिस्ट, शी डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये गॉड इस एंटिटी को एड्रेस नहीं करोगे, तो स्टेटमेंट की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। डज नॉट एग्जिस्ट ये स्टेटमेंट ही अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो नास्तिकवाद के नास्तिक में भी आस्तिक शब्द आता है, उसके बिना वो नास्तिक भी नहीं ठीक से बन सकता, या नास्तिक शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते। एथीज्म के अंदर थीज्म है। सो गॉड इज सो मच डीपली existing that even an atheist cannot say atheist without using the word theist in his atheism। वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। इतने भगवान गहरे गहराई में अपने अस्तित्व में स्थित है। तो अल्टीमेटली एवरीवन फॉलोज कृष्ण। ये तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अभी मैं आपके सामने मेरे भी अपने कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप कोई भौतिक कार्य भी क्यों ना करो, है ना, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, पढ़ लिख कर कुछ बहुत बड़ा बनना चाहते हो, या बहुत पैसे कमाना चाहते हो, जो भी आपके मटेरियल एस्पिरेशंस हैं, कोई भी मटेरियल एस्पिरेशंस है, अल्टीमेटली मटेरियल एस्पिरेशंस किसके लिए है? अगर हम प्रश्न पूछें किसके लिए, तो सभी मटेरियल एस्पिरेशंस का एक पॉइंट आ जाता है, आई विल बिकम हैप्पी। एक्चुअली आप खुश हो या ना हो ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आपका एम ये है कि मैं खुश होना चाहता हूं, इससे आपका सेटिस्फैक्शन है, आप खुश होना चाहते हो, ये सबका बॉइलिंग पॉइंट है ना। कोई भी दुनिया में कार्य हो, आप अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे घर में रहो, सबसे सुंदर लड़की से शादी करो, 10-12 गाड़ियां होंगे, हजारों नौकर होंगे, महल जितना बड़ा घर होगा, या पूरे पृथ्वी को आप कंट्रोल करो, जो भी है, पॉइंट ये है कि इधर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए।
इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं, या हम खुश हों तो सभी लोग आनंद के पीछे भाग रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, एवरीवन इज रनिंग फॉर आनंद। आनंद कौन है, ये प्रश्न उठता है, आनंद कौन है? वेदांत सूत्र में कहा गया है आनंदमयो अभ्यासात, भगवान ही आनंद है। क्यों? भगवान आनंद इसके लिए है क्योंकि हम आनंद तो उसे कहेंगे ना जो परमानेंट है। कुछ 80 100 साल के लिए आप पूरे पृथ्वी का राज भी क्यों ना करो, उसे आनंद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आनंद टेम्पररी नहीं हो सकता, इट हैज टू बी परमानेंट, नहीं तो वो आनंद नहीं है। उसे आप सुख कह सकते हो, क्योंकि सुख टेम्पररी है, लेकिन वो सुख भी क्या है, उस सूर्य रूपी आनंद का एक किरण का भी किरण है वो सुख, क्योंकि वो टेम्पररी है। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को? सो एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड आनंद, बट आनंद तो परमानेंट होना चाहिए। अगर आनंद समाप्त हो जाए तो वो कैसा आनंद? इसलिए आनंद बाय डेफिनेशन, कहने का तात्पर्य है इट इज ऑलवेज, इट इज परमानेंट, इट इज निरंतर। तो निरंतर कौन है? निरंतर केवल भगवान है, बाकी सभी लोग विकार से युक्त है। बाकी सभी लोग, केवल भगवान ही कौन है? अधोक्षज है, मतलब अपने पोजीशन से कभी गिरते नहीं, इज अधोक्षज। तो आनंदमयो अभ्यासात, ये शास्त्रों में भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। तो इवन हम ये देखें कि हम भौतिक कार्य करने के पीछे भाग रहे हैं, मैं कोई कंपनी ज्वाइन करता हूं, सो इट इज माय एम कि उस कंपनी के टॉप लेवल पे मैं जाऊं। इट इज माय एम कि मैं, अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करता हूं तो इट इज माय एम कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूं। अगर मैं म्यूजिक ज्वाइन करता हूं सो इट इज माय एम कि इतिहास में सबसे बड़े संगीतकारों में मेरा नाम हमेशा हो। तो अल्टीमेटली आपका एम क्या है? कि मैं स्वयं सेटिस्फाइड हूं, मैं स्वयं खुश हूं। तो ये खुशी जो आप ढूंढ रहे हो, ये आनंद जो आप ढूंढ रहे हो, ये आनंद का सागर कौन है, आनंद का स्रोत कौन है? यह प्रश्न अगर आप उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप जितना भी पीछे जाओ, ये आनंद का स्रोत कौन है, सबसे ज्यादा आनंद में कौन है, सबसे ज्यादा आनंद में कौन है, उस वो किसके कारण आनंद में है, तो आपको पता चलेगा कि एंड पॉइंट जो है वो कृष्ण है। द एंड पॉइंट इज ऑलवेज द बिगनिंग पॉइंट। तो वो अंतिम जो गंतव्य है वो सभी का स्रोत है। एंड उस आनंदमय अभ्यासात को आचार्य कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण की भक्ति करना ये कोई भावनात्मक कार्य नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। आप खोज के निकालिए। जैसे उदाहरण के लिए, अंश हमेशा अंशी के पास भागता है, ठीक है। पार्ट ऑलवेज रन्स टू द वन हु इज होल्डिंग दोज पार्ट्स, है ना। उदाहरण के लिए, नदियां सारे कहां जाती हैं? नदियां सारे समुद्र की ओर जाएंगी, सारी की सारी नदियां। क्यों? वो समुद्र से अलग क्यों नहीं जाती? कभी इसके विषय में विचार किया है? नहीं। एक्चुअली समुद्र से सारा पानी निकलता है सूर्य के कारण, तो वापस वो नदी बन के नीचे आता है, तो नदियां कहाँ जाएंगी? समुद्र के पास। क्यों? क्योंकि नदियां समुद्र का अंश है, अंश हमेशा अंशी के पास ही अट्रैक्ट होता है। वैसे ही इस पृथ्वी से बने हुए कोई भी ऑब्जेक्ट को, या इन शॉर्ट हम ऐसा कहें कि कोई भी चीज इस पृथ्वी में है, हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे क्यों गिरती है? उदाहरण के लिए हम जल भी कह दें, जल अगर पानी भी हम ऊपर फेंकते तो नीचे गिरता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पृथ्वी के लक्षण हैं। तो पृथ्वी के लक्षण पृथ्वी में मिल जाते हैं, और पानी को भी अगर हम फेंके तो पानी पृथ्वी के अंदर जो जल के मॉलिक्यूल्स है उसमें मिल जाती है। इट इज ऑलवेज लाइक दैट। ये साइंटिफिक प्रोसेस है, आप इसके ऊपर विचार कीजिए कभी। अग्नि जो है, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर क्यों धधकती है? अग्नि नीचे क्यों नहीं? आप मैच स्टिक जलाइए, मैच स्टिक को आप सीधा रखना तो भी अग्नि ऊपर जाएगी, मैच स्टिक को आप उल्टा पकड़ो तो भी अग्नि ऊपर ही जाएगी। क्यों?
क्योंकि एलिमेंट ऑफ फायर जो है, जो फायर का गोला जिसे हम सूर्य कहते हैं, इट इज एट फार डिस्टेंस प्लेस, वो दूर है, और पृथ्वी के तुलना में वो पृथ्वी से ऊपर है। आप अगर सूर्य को देखो, पृथ्वी कण है, तो जो व्यक्ति यहां खड़ा है पृथ्वी में, उसके लिए सूर्य ऊपर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एवरी एलिमेंट रन्स बिहाइंड द सोर्स ऑफ दैट एलिमेंट, ये स्वभाव है। तो जीव स्वभाव से आनंदमय है, इसलिए वो आनंद के पास हमेशा भागता है, चाहे वो भौतिक क्रियाओं से हो या आध्यात्मिक क्रिया से हो, वो हमेशा आनंद के पास भागता है। तो ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट समझाना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान के ही पास जा रहा है, उन्हीं का फॉलोअर है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी लोग एक समान हो गए, नहीं, सब लोग अलग अलग लेवल्स पे सिचुएटेड है, वो हमें समझना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते, आगे चलकर भगवान भी ये कहते हैं कि अल्टीमेटली सारे रास्ते मेरे पास ही आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि पापी व्यक्ति भी भगवान के पास पहुंचता है, नहीं। पापी व्यक्ति को दंड मिलता है, दंड मिलने के बाद वो सुधरता है, पुण्य कार्य करता है, पुण्य कार्य बहुत जन्मों के करने के बाद उसको साधु संग होता है, फिर वो भक्ति के चीजों को समझ सकता है, फिर वो भगवान के पास पहुंचता है। तो एक पूरा प्रोसेस है। इसलिए तो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद, जस्ट बिकॉज सीढ़ियां भी आपको 10वें माले तक लेके जाती है, लिफ्ट भी आपको 10वें माले तक लेके जा सकता है, इसका अर्थ ये नहीं कि सीढ़ियां और लिफ्ट दोनों का एक्सपीरियंस एक है, ऐसा नहीं है। दोनों पे चलने वाला व्यक्ति ने दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस किए हैं। जो सीढ़ियों से चढ़ता है वो बहुत देरी से पहुंचता है, जो लिफ्ट से जाता है वो जल्दी पहुंचता है। एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट। और सीढ़ियों से चलने वाला व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा एक दिन कि बार बार सीढ़ियों से चला नहीं जा सकता, यू हैव टू टेक अप लिफ्ट। आप समझ रहे हैं? और उस दृष्टिकोण से फिर बाद में वो भगवान के पास पहुंचता है। तो जब भगवान कहते हैं कि सारे रास्ते मेरे पास आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करते रहो भगवान के पास जाओगे, और पाप करते रहो तो भी भगवान के पास जाओगे, ऐसा नहीं है। भगवान के पास तो सिर्फ भक्ति से जा सकते हैं, लेकिन कर्म करना या इनफैक्ट कोई गलत कार्य भी करना, पाप करना, ये केवल आपको प्रेरित कर सकता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर आप भक्ति के मार्ग पे आगे जाओगे कई जीवनों के बाद, और फिर भक्ति से आप भगवान के पास जाओगे। दैट इज हाउ एवरी पाथ लीड्स टू गॉड। ये एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो एसेंस में अगर मैं इसे कहूं तो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में ये कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम मतलब आपके हृदय में कोई कामना नहीं है। सर्व काम, अगर आपके हृदय में भर भर की इच्छाएं हैं। मोक्ष काम, आपके हृदय में अगर मुक्ति की इच्छा भी है। ये तीनों ही प्रकार के लोगों को रिकमेंड किया जा रहा है, तीव्रेण भक्ति होगी ना, उनको बहुत गहराई से, एकदम स्पीड से भक्ति करनी चाहिए। यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की यजेत, उनकी आराधना, उनका यज्ञ करना चाहिए। कलयुग का यज्ञ क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राये, उनका नाम स्मरण करना चाहिए, इन शॉर्ट। कमिंग टू 4.12, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अभी भगवान बताते हैं, men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. अभी भगवान ये कहते हैं कि देवताओं की आराधना करने वाले भी हैं, अल्टीमेटली वो भी मेरी ही आराधना करते हैं, लेकिन उनका आराधना क्या है? इनडायरेक्ट है। उनकी आराधना इनडायरेक्ट है। क्योंकि उन्हें जल्दी सक्सेस चाहिए, इसलिए वो कर्मकांड को अपनाते हैं, और कर्मकांड में अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। क्विकली, ऑफ कोर्स, उन्हें जल्दी ही रिजल्ट्स मिलते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, जल्दी मिलते हैं। आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देयर इज अ ग्रेट मिसकंसेप्शन अबाउट द गॉड्स और डेमीगॉड। देवताओं के विषय में एक बहुत ही गलत धारणा है। कम बुद्धि वाले लोग ऐसा कहते हैं, जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, वो सोचते हैं कि अलग अलग जो सभी देवता है वो उस भगवान का स्वरूप है, ऐसा उनका मानना है। प्रभुपाद जी शास्त्रिक रेफरेंस से कहते हैं एक्चुअली द डेमिगॉड्स आर नॉट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड, बट दे आर गॉड्स पार्ट्स एंड पार्सल। वो भगवान के स्वरूप नहीं है लेकिन भगवान के अंश है। इसे आप समझिए, भगवान का स्वरूप नहीं है वो उनके अंश है। उस बात को हम स्वीकार करते हैं। जैसे मेरे पूरे शरीर में ये 5 उंगलियां हैं, ये हाथ है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, सर है, बाल है, अलग अलग सभी अंग है। तो भगवान जैसे मेरे शरीर का ये उंगली है, ये अंश है, मेरे शरीर का स्वरूप नहीं है ये, उसका अंश है ये। स्वरूप होने का क्या तात्पर्य हो गया कि उंगली को देखकर आप कह सकते हो कि यही शरीर है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये उंगली यहां से कट जाए और उंगली को मैं अलग करूं, तो उस उंगली को देखकर आप नहीं कह सकते कि ये किसका उंगली है। आप इसे समझिए। इसलिए स्वरूप का मतलब क्या हो गया कि उस व्यक्ति से इतना अभिन्न है कि वो व्यक्ति अगर दूसरे रूप में भी आ जाए तो भी स्व का ज्ञान, अगर कृष्ण राम के रूप में भी आ जाए तो भी आपको पता है कि यह कृष्ण है। इसको कहते हैं स्वरूप। अगर कृष्ण नरसिम्हा के भी रूप में आए तो भी आपको पता है कि ये विष्णु ही है, ये कृष्ण ही है। ये होता है स्वरूप। अंश का अर्थ होता है कि वो उस स्वरूप से निकला हुआ एक भाग है, निकला हुआ एक भाग है। और उस स्वरूप के कुछ शक्तियां उस अंश में होती है, इसको कहते हैं अंश। तो देवता जो है वो स्वरूप नहीं है, वो अंश है भगवान के। और भगवान ने उनको अलग अलग कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान की है। सो प्रभुपाद जी कह रहे गॉड इज वन। भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके अंश कई अनेक हो सकते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद अपने मन से कह रहे हैं क्या? नहीं। नित्यो नित्यानाम, ये उपनिषद का वाक्य है। नित्यो अर्थात भगवान, नित्यानाम मतलब उनके सभी अंश। सो गॉड इज वन, ईश्वर परमः कृष्ण। भगवान तो एक है लेकिन सभी देवता क्या है? सी, दीज ऑल डेमिगॉड्स आर लिविंग एंटिटीज। सभी देवता क्या है? नित्यानाम। और सिर्फ देवता ही क्यों? सिर्फ देवता ही क्यों, हम सभी जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, जो भी कुछ है, ये सभी भगवान का अंश मात्र ही है। भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं, जीव क्या है? ममैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव मेरा अंश है। तो भगवान कौन हो गए? भगवान अंशी हो गए, अर्थात अंश को धारण करने वाले, वो अंशी हो गए। हम भगवान का स्वरूप नहीं है, हम भगवान के अंश है। वैसे ही देवता हमसे श्रेष्ठ है, लेकिन वो स्वरूप नहीं, वो अंश ही है। अंशी नहीं, अंश है। दैट्स द पॉइंट। अभी आगे हम इसे समझते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य हो रहा है। देखिए, ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको कहना भूल गया। मान लीजिए कोई ऐसा कहता है कि कृष्ण भगवान है, शिवजी भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, इंद्र भगवान है, भगवती देवी दुर्गा भी भगवान है, गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है। ये सब अलग 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 प्रकार के देवताओं को भगवान ही कहा जा रहा है। ठीक है। शास्त्रों में भी कई बार भगवान कहा गया है। इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनना। भगवान को शास्त्रों में दूसरा नाम परम सत्य भी कहा गया है। परम सत्य, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है। अगर सभी लोग भगवान हैं, ठीक है, सभी लोग परम सत्य है, तो परम ये शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य ही नहीं रह जाता, क्योंकि परम मतलब एक ही होना चाहिए। इसको आप इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो क्लेम करता है कि वो परम सत्य है,
दूसरा पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो क्लेम करता है कि वो परम सत्य है। अब परम होने के लिए तो कोई एक ही उस पोजीशन पे हो सकता है, दो नहीं हो सकते। अगर दो हो गए तो वो परम नहीं कहलाएगा, वो सत्य कहलाएंगे लेकिन परम नहीं कहलाएंगे। देयर मे बी मेनी ट्रूथ्स बट एब्सोल्यूट ट्रूथ इज ऑलवेज वन। तो क्योंकि दोनों भी अगर खुद को परम सत्य कहते हैं, सो देयर विल बी अ कंपटीशन कि कौन एक्चुअली परम सत्य है। शक्ति के माध्यम से हो सकता है, या फिर ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, सौंदर्य के माध्यम से हो सकता है। सो अनेक गुणों के माध्यम से उस परम के लिए कंपटीशन हो सकता है। इंडिपेंडेंस के माध्यम से भी हो सकता है, कौन सर्वपूर्ण स्वतंत्र है। अगर दोनों ही ये क्लेम करते हैं कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इसको आप लॉजिकली समझिए, अगर दोनों भी ये क्लेम करते हैं कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो ये क्लेम अपने आप में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रियल में इंडिपेंडेंट है, तो दूसरे व्यक्ति को ये कहने की आवश्यकता ही नहीं कि वो इंडिपेंडेंट है। आप समझिए इस बात को। आपको जैसे ही आवश्यकता दिख रही है ये कहने की दैट आई एम इंडिपेंडेंट, मतलब आप बाध्य हो, आप बंधे गए हो अपने आप को प्रूव करने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप बाध्य हो प्रूव करने के लिए कि आप स्वतंत्र हो। तो आप बाध्य हो, बाध्य होना ही मतलब अपने आप में आप स्वतंत्र नहीं हो। इसलिए दो लोग कभी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते। तो परम सत्य एक होना चाहिए। समहाउ और दी अगर एक आप ऐसा सिचुएशन ले लो कि दोनों भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं, थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, तो भी कॉम्प्रोमाइज करने से क्या हो गया, वो हार्मनी में आ गए। तो हार्मनी में आने के बाद बचता क्या है? सिर्फ एक ही बचता है। इसलिए परम सत्य तो एक ही हो सकता है। सत्य बहुत सारे हो सकते हैं, बट एब्सोल्यूट ट्रूथ एक ही हो सकता है। चाहे वो इंडिपेंडेंट वे में हो, या नॉलेजेबल वे में हो, पावर्स में हो, या ब्यूटी में हो, एनी एस्पेक्ट, सबसे श्रेष्ठ तो एक ही हो सकता है। और बाकी सब जिनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो एक व्यक्ति सभी के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करता है, उन उन जीवों को वो शक्ति प्रदान करता है। और उन उन एक एस्पेक्ट में वो जीव भगवान की याद दिलाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उस मात्रा में उनको भगवान कहा गया है। आप समझ रहे हैं इसका अर्थ? लेकिन भगवान अगर सभी भगवान हैं, तो भगवान का अर्थ क्या रह गया? अगर सभी प्रधानमंत्री ही हैं, तो प्रधान शब्द का महत्व खत्म हो गया ना। भाई मंत्री तो सभी हैं, लेकिन प्रधान कोई एक ही है, तभी तो उसको प्रधानमंत्री कहा गया है ना। आप इस बात को समझिए। अगर सभी राजा ही हैं, तो राजा शब्द का महत्व ही खत्म हो गया। तो प्रजा भी राजा है, राजा भी राजा है, तो कौन किसका नियंत्रक है? और जब सभी इक्वली है, तो पूरा सोसाइटी केओटिक बन जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए देयर हैज टू बी सम सुपीरियर मोस्ट, देन सुपीरियर पीपल, देन लेस सुपीरियर एंड देन इंफीरियर। ऐसे ग्रेडेशंस नेचुरली सोसाइटी में हमेशा होंगे, बिकॉज दिस इज हाउ एवरीथिंग एग्जिस्ट। इसी प्रकार से एग्जिस्ट करता है, ये स्वाभाविक है। तो प्रधानमंत्री ही अगर सब हैं, सभी प्रधानमंत्री है, तो प्रधान का अर्थ नहीं रह जाता। भगवान सभी है, तो भगवान शब्द का ही अर्थ नहीं रह जाता। तो कोई एक भगवान होना चाहिए, उनके सारे अंश होने चाहिए। आप इस बात को समझिए, दैट वन भगवान हैज मेनी अंशस। उसको कहते हैं नित्यो, मतलब भगवान नित्य है। नित्यानाम मतलब सभी जीव जो हैं वो भगवान के अंश हैं। ये क्लियर हो? आज का सत्र हम यही विराम करते हैं। आने वाला सत्र थोड़ा महत्वपूर्ण है, सो उस श्लोक को हम नहीं लेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।